राज्यों की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर, क्योंकि खबर को हम दिखाते हैं डंके की चोट पर। लेकिन आपको पता है, न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, खबर का पंच होता है, तथ्यों का पंच होता है, आंकड़ों का पंच होता है, क्योंकि हम करते हैं खबरों की पूरी पड़ताल। और आइए सीधा रुख करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, जो इस समय मुंबई में और आरबीआई की 90वें वर्षगांठ पर संबोधन दे रही है। देवेंद्र फडणवीस जी, यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स श्री एकनाथ शिंदे जी, श्री अजित पवार जी, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया श्री संजय मालहोत्रा जी, Deputy Governors, Directors and the staff of RBI, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am pleased to be with you today as we celebrate the 90th anniversary of the Reserve Bank of India. As the RBI crosses this memorable milestone, I offer my congratulations to the Governor and Deputy Governors, the directors and the staff, past and present, for making it a great institution. The RBI, as the central bank, is at the very center of India's incredible growth story. It has witnessed the whole journey of the country so far, from the time before independence, when it was suffering from widespread poverty, to the time now, when it is among the top economies in the world. As it was established in 1935, the RBI was placed a step ahead of this curve and actually guided the country along this journey. I have no hesitation to saying that the RBI has emerged as one of the most critically important institutions in the nation. Is it not less than a miracle that a piece of paper becomes fiat money when it bears the RBI governor's signature? Nobody else's signature has that power. Everyone needs that piece of paper to conduct their daily life. A common man or woman has no direct interactions with RBI except for its name printed on the currency notes in their pockets, but indirectly all their financial dealings through banks and otherwise are governed by the RBI. And they instinctively place their utmost faith in the financial system overseen by it. In the 9 decades, the biggest achievements of the RBI is this trust. The RBI earned this trust by steadfastly maintaining its mandate of price stability, growth, and financial stability. Also, it has continuously adapted to meet the evolving needs of our growing nation. Its swift responses to key challenges, from economic liberalization in the 1990s to the COVID-19 pandemic, highlights its resilience and adaptability. In an increasing globalizing world, it has also ensured that India's financial system remains resilient in the face of any adverse international trends. It is noteworthy that the RBI sees itself as more than a central bank and has played a pivotal role in financial inclusion and institution building initiatives. As for institution building, the RBI has over the years strengthened the financial ecosystem by establishing
key institutions such as the NABARD, IDBI, CDB, and National Housing Bank. It has thus provided essential support for agriculture, small businesses, and housing. Initiatives like the Lead Bank scheme have laid the foundation for expanding banking reach, ensuring that economic growth is inclusive and widespread. For financial inclusion, it has supported the PM Jan Dhan Yojana by facilitating and enabling regulatory framework. It is heartening to note that a large number of women are account holders in Jan Dhan Yojana. It has been crucial in realizing the vision of universal financial access and ensuring that the benefits of formal banking reach every citizen. The RBI has played a key role in making India a global leader in digital payments by continuously modernizing the country's payment infrastructure. It has ensured that digital transactions are not only seamless and efficient, but also secure. Innovations like the UPI has revolutionized financial access, enabling instant, low-cost transactions, and deepening financial inclusion. Beyond payments, RBI has nurtured a vibrant fintech ecosystem. As India's transition towards an increasingly technology-driven financial ecosystem, RBI continues to strengthen its consumer protection framework, adapting to emerging challenges while upholding the trust and stability that form the bedrock of our financial system. Ladies and gentlemen, the RBI has also consistently strived to uphold people's trust by placing consumer interest at the center of its policies. Deposit insurance continues to be an essential aspect of customer protection. It continues to strengthen its grievance redressal systems, ensuring quick and transparent resolution of customer complaints. The Internet Ombudsman system has further streamlined the process, providing customers with easier access and faster resolution. Financial awareness is a key pillar of consumer protection. RBI's campaigns and publications have played pivotal role for people understanding banking risk, recognize fraud, and make informed financial decisions. With the rapid advancement of technology, the risk of financial fraud and cyber threats is also increasing. This growing concern demands constant vigilance, and RBI has been taking proactive measures, strengthening safeguards, and ensuring a secure banking environment. I was glad to learn about the RBI's commitment for the environment. In the time of climate change, it is commendable to see a central bank taking innovative steps to promote sustainable finance. As the government leads the transition to a greener economy, the RBI has complemented this vision through measures such as the Green Deposit Framework, which directs funds towards environmentally sustainable projects, and the inclusion of green finance under priority sector lending to encourage banks to support eco-friendly initiatives. Ladies and gentlemen, the RBI has not only evolved with the changing times, but has been a key architect of India's financial transformation. From containing inflation in strengthening financial inclusion to maintaining monetary stability and enabling robust economic growth, its role has been fundamental in shaping the nation's economic destiny. The RBI's remarkable journey over the past 90 years has been closely aligned with the vision and policies of the government. This enduring
Partnership has been essential in navigating complex economic transitions, implementing critical financial reforms, and maintaining macroeconomic stability. As India approaches the centenary of its independence, the mission of Viksit Bharat 2047 calls for a financial ecosystem that is innovative, adaptive, and accessible to all. The path ahead will present new complexities and challenges. Yet, with a steadfast commitment to stability, innovation, and inclusivity, RBI will continue to be a pillar of strength, reinforcing trust and steering India towards a future of prosperity and global leadership. As the guardian of monetary and financial stability, RBI will play a defining role in this journey, ensuring a sound banking system, driving financial innovation, and safeguarding trust in our financial ecosystem. Once again, I extend my heartiest congratulations to the entire RBI family, past and present, on this milestone, and I wish the institution continued success in the year ahead. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जहां आरबीआई के 90वीं वर्षगांठ के समापन समारोह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रही थी। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया, जहां कहा कि इन 90 वर्षों में आरबीआई कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का साक्षी रहा है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा इन 90 वर्षों में फाइनेंशियल इकोसिस्टम यानी कि अर्थतंत्र को मजबूत करने में आरबीआई ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। साथ ही साथ चुनौतियों का भी जिक्र राष्ट्रपति ने किया, जहां साइबर फ्रॉड को लेकर बात कही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और कई महत्वपूर्ण बातों का भी जिक्र राष्ट्रपति ने किया। आइए न्यूज़ पंच में वापस आ जाते हैं और न्यूज़ पंच में एक एक खबर करके जानते हैं तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ और अपने संवाददाताओं से भी लेंगे तमाम अपडेट। सबसे पहले नजर डालते हैं खबर दर खबर जिन 3 खबरों पर आज न्यूज़ पंच में हमारी नजर रहने वाली है। सबसे पहले जिस खबर का रुख करेंगे वो है ममता बनर्जी से जुड़ी हुई। ममता बनर्जी ने वाम और राम को लेकर क्या बड़ा बयान दे दिया है, जिस पर भाजपा को कहना पड़ गया है कि कौन सा धर्म गंदा है ममता बनर्जी। अगले खबर का रुख करेंगे। अगली खबर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से जुड़ी आ रही है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के चीन में बिगड़ गए हैं सुरताल। क्या बोल बैठे हैं वो पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में, ये भी आपको बताएंगे तथ्यों और आंकड़ों के साथ। और जिस आखिरी खबर पर हमारी नजर रहने वाली है वो रहने वाली है उत्तराखंड से जुड़ी हुई। जी हाँ, उत्तराखंड में अब कई जगहों का पता बदल चुका है, तो ध्यान दे लीजिएगा क्योंकि हम आपको बताएंगे एक एक करके कि क्या है ये नया पता और क्या थे वो पुराने नाम जिसको बदलने की घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर डाली है। तो आइए न्यूज़ पंच में एक एक खबर करके जानेंगे विश्लेषण के साथ, विस्तार के साथ। और सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, क्योंकि उनके भी सुरताल बदल गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसा क्या बोल डाला है कि बीजेपी अब उनके ऊपर हो गई है हमलावर। बीजेपी को जुमला पार्टी करार देते हुए ममता बनर्जी कह रही हैं कि वे जानबूझकर बनाए गए गंदा धर्म को नहीं मानती हैं। वहीं सीएम ममता बनर्जी के गंदा धर्म वाले बयान पर बीजेपी इस समय हमलावर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईद के अवसर पर कोलकाता स्थित रेड रोड पर नमाज में हिस्सा लिया। इस दौरान मंच में उन्होंने बीजेपी पर धर्म के नाम पर सौदेबाजी करने का आरोप लगाया, यानी कि बीजेपी को कह रही है वो सौदेबाज। बनर्जी ने सोमवार को लोगों से सांप्रदायिक दंगा को बढ़ावा देने वाले उकसावे में न आने का भी आग्रह किया और इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी सरकार निवासियों के साथ खड़ी रहेगी और वे सुनिश्चित करेगी कि कोई भी राज्य में तनाव ना फैल सके। देखिए जी, ये ममता कह रही हैं। उन्होंने कहा कि दंगों को बढ़ावा देने के लिए उकसावे किए जा रहे हैं, लेकिन कृपया आप इन जाल में ना फंसें। तो ममता बनर्जी किस धर्म की बात कर रही है, किस गंदे धर्म की बात कर रही है, जिस पर अब बीजेपी तीखा हमला बोलती हुई नजर आई है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या वो बयान दे दिया है जिस पर भाजपा हमलावर हो गई है। जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो
है कि कौन सा धर्म घंटा है जिसको ममता कह रही हैं। भाजपा लगातार हमलावर है, भाजपा तीखा हमला बोल रही है ममता बनर्जी के इस बयान पे। आइए देख लेते हैं कि भाजपा इस पर क्या बोल रही है। तो कौन सा धर्म गंदा है, बीजेपी ने पूछा है सवाल। ममता के बयान पर भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया आती हुई नजर आ रही है। क्या कह रहे हैं, बंगाल सीएम के ईद पर दिए गए बयान को बता रही है भाजपा भड़काऊ। यानी कि ममता बनर्जी ने जो बयान कल दिया है, बीजेपी का कहना है ये भड़कावा देने वाला भाषण है और इस भाषण पर बिल्कुल भी गौर ना किया जाए। विवादास्पद बयान कह रही है भाजपा। साथ ही बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी का तीखा हमला ममता बनर्जी पे होता हुआ नजर आ रहा है। शुवेंदु अधिकारी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप किस धर्म का उल्लेख कर रही थी। यानी कि ममता बनर्जी पर कह रही है कि अगर आप सनातन हिंदू धर्म का उल्लेख कर रही हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं ममता जी। क्या ममता बनर्जी सनातन धर्म को गंदा धर्म मानती है? ये पूछना है शुवेंदु अधिकारी का, ये पूछना है भाजपा का। हिंदू धर्म को लेकर अपमानजनक बताया है ममता के बयान को भाजपा ने। तो कल जो ममता बनर्जी ने बयान दिया है उस पर भाजपा लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है और उन्हें सियासत गर्म करने का भी एक बड़ा मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। सवाल किया है कि क्या यह आयोजन धार्मिक था या राजनीतिक था। ईद के कार्यक्रम पर वो पहले भी जाती आई हैं, ऐसे में इस तरीके के भाषण देना, भड़काऊ भाषण देना, भाजपा ने कहा कि क्या ये सोची समझी राजनीति के तहत है, क्या ये ममता की रणनीति है। आइए अब जानते हैं कि सियासी गलियारों से और भी प्रतिक्रिया आ रही है। क्या है वो प्रतिक्रिया? महाकुंभ में सारे विश्व से लोग आए हैं, सारे भारत से करोड़ों के पुण्यार्थी आए हैं। उसको ये इतना बड़ा घटना को, इतना बड़ा एक पुण्य स्नान पुण्य तिथि को ये सम्मान करके वो मृत्यु कुंभ कहती है। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज और कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छी अपील है और वो अपेक्षा करते हैं वैसी अपील वह जब दुर्गा पूजा हो तब भी किया करें। तब तो वह मुहर्रम के लिए छूट देती हैं पहले की नहीं, मुहर्रम का जो जलसा पहले निकलेगा, और दुर्गा पूजा पर या सरस्वती पूजा पर रोक लगाती हैं। परंतु फिर भी अच्छी बात है अगर वह ये अपील कर रही है कि वहाँ पर सद्भावना बनी रहनी चाहिए। नाटक नौटंकी से अब बंगाल नहीं चलने वाला। बंगाल की जनता देश के साथ, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के भाव से एक साथ खड़ी होगी। अब ये अखबार है कि जनता के सामने सब सच आ गया, तो अब तरह तरह के बयान देकर बरगलाना। अब देश की जनता बरगलने वाली नहीं है। बंगाल की जनता झूठ के चंगुल में फंसने वाली नहीं है। तो ममता बनर्जी के इस बयान से ममता बनर्जी को भारी भर्त्सना सहनी पड़ रही है। राजनीतिक गलियारों से इसको नाटक नौटंकी वाला बयान भी कहा जा रहा है। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि रामनवमी पर पहले भी हो चुके हैं दंगे। ऐसे बयानों के साथ 2023 में रामनवमी पर हो चुके हैं दंगे, पहले भी ऐसे बयान दे चुकी हैं ममता बनर्जी। साथ ही साथ हावड़ा, हुगली जिलों में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, भूलिएगा नहीं इस तिथि को। साथ ही आपको बता दें कि 30 मार्च और 2 अप्रैल 2023 को निकाला गया था रामनवमी जुलूस, और जुलूस में पर जीटी रोड पर हुआ था हमला। याद है ना आपको? जुलूस में शामिल लोगों पर पत्थर और ईंटें फेंकी गई थी। और जो 2 अप्रैल को हमला हुआ था, आपको बता दें, इसमें जो ईंटें फेंकी गई थी वो हुगली के रिश्रा में हिंसा बड़ा खुटी थी उसके बाद। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बारो मस्जिद के सामने 2 समुदायों के बीच तनाव भी पैदा हो गया था। ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं। साथ ही साथ ये देखो, बारो मस्जिद के सामने 2 समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया था और साथ ही पत्थर और देसी बमों से हमला किया गया, एक ऐसे बयान से जिससे हिंसा भड़क उठी थी, लोगों को गंभीर चोटें आई थी। फिर बात कर लेते 17 अप्रैल 2024 की भी, मुर्शिदाबाद की हिंसा की, यहाँ भी हिंसा भड़क उठी थी 17 अप्रैल 2024 को। साल 2022 में भी रामनवमी के दिन हिंसा भड़की थी। चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं, रामनवमी आने वाली है। इससे पहले ममता बनर्जी का ये बयान, जिसके बाद राजनीतिक सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। तो बंगाल में इस समय सियासी हलचल जो है बढ़ चुकी है। ममता के बयान से राजनीति में इस समय उबाल होता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि लगातार
राजनीतिक गलियारों से प्रतिक्रिया मिलती हुई नजर आ रही है। हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, ये कोई नया जुमला नहीं है ममता के लिए, बार बार इस तरीके के भड़काऊ भाषण, इस तरीके की राजनीति करना ममता की आदत बन चुकी है और ऐसे में बीजेपी हमलावर है, बीजेपी को मिल चुका है मुद्दा। लेकिन बात यह है कि जनता प्रभावित होती है इससे, जनता के इमोशंस जुड़े हुए हैं ऐसे भाषण के साथ, और ईद का मौका था उस पर इस तरीके के भाषण देना कितना ममतामयी कहें इसको? देखिए भावना, ये बंगाल के लोग अब थक चुके हैं। बंगाल के लोग सीएए की समय पे किस तरह की घटना घटी ये देख चुके हैं। बंगाल के लोग नुपुर शर्मा की समय पे क्या घटना घटी ये देख चुके हैं। बंगाल के लोग 2022 और 2023 में क्या हुआ है, और ये सारे कुछ ममता बनर्जी की भड़काऊ भाषण के बाद या भड़काऊ किसी तरह की स्टेटमेंट के बाद। किसी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कल इस ईद की समारोह में जहां पे नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आए थे, वो एक धर्म की मंच से इस तरह की राजनीति का भड़काऊ भाषण देने का क्या जरूरत था? अगर कल इस भाषण के समय पे वहां पे जो काजी साहब लोग खड़े थे और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी खड़े थे जी, अगर इन लोगों का बॉडी लैंग्वेज देखे तो शायद इन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह की भड़काऊ भाषण ममता बनर्जी को देने का क्या जरूरत पड़ गया, और आने वाले दिनों में इसका जिम्मेदारी कौन लेंगे? बिल्कुल, आने वाले दिनों में इसका क्या असर बंगाल पे पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक के बाद एक ममता इस तरीके के भाषण दे रही है, धरती पर भी और बाहर विदेश की जमीन पर भी। प्रसन्नजीत, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर बांग्लादेश से जुड़ी आ रही है। जी हाँ, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अब ऐसा क्या बोल दिया कि इस पर भी विवाद खड़ा हो गया। भारत को लेकर एक विवादित बयान दिया है, वो भी चीन की जमीन पर। यूनुस ने कहा है कि चूंकि भारत के 7 राज्य भूमि से घिरे हुए, यानी कि 7 सिस्टर्स की बात कर रहे हैं, 7 सिस्टर्स यानी कि उसकी जो भूमि है वो लैंड लॉक्ड है, ये कहना है मोहम्मद यूनुस का। इन 7 सिस्टर्स का समंदर से कोई संपर्क नहीं है, ये कह रहे हैं मोहम्मद यूनुस। इसलिए उस क्षेत्र में समंदर का असली संरक्षण कौन है? बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस इस बड़े बयान के साथ चीन में गए और इस बयान को लेकर भारत के समुद्री संबंधों पर एक नया विवाद उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। इस बयान से वे चीन को ये इशारा कहीं ना कहीं देते हुए नजर आ रहे हैं कि उस क्षेत्र में विकास परियोजना लेकर आए, यानी चीन भारत के इन 7 राज्यों में हस्तक्षेप करे। मोहम्मद यूनुस की इस चीन यात्रा के दौरान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र कर अब ये बड़ा विवाद मोहम्मद यूनुस ने खड़ा कर दिया है, और इससे बांग्लादेश की भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने की बू भी कहीं कहीं आने लगी है। सवाल ये उठने लगे हैं कि यूनुस चीन के साथ अपनी लड़खड़ाती आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए चीन की धरती पे गया, लेकिन भारत को कहां से बीच में ले आया। इस बयान के बाद भारत में भी अब कड़ी प्रतिक्रिया आने लगी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने भी सवाल उठाए हैं, कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि यूनुस ने क्या बोल डाला जिससे बिगड़ गए उनके बोल। States of India, eastern part of India, called 7 Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy, build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. तो सुन रहे थे आप मोहम्मद यूनुस को, क्या कहना है उनका। चीन की जमीन पर गए अपने और बांग्लादेश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, लेकिन उसमें भारत क्यों ले आए। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मोहम्मद यूनुस आखिर चाहते क्या हैं। चीनी रेवड़ियों पर पलेगा बांग्लादेश। चीन के साथ 9 समझौतों पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। 4 दिन की चीन यात्रा पर गए थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई थी। चीन से 17,500 करोड़ रुपए का लिया है कर्ज, यानी कि बांग्लादेश की स्थिति आप समझ रहे हैं, पहले ही आर्थिक स्थिति कमजोर नजर आ रही है। चीन की धरती पर गए 17,500 करोड़ का लिया कर्ज, निवेश और औपचारिक वार्ता शुरू करेंगे दोनों देश। और चीन औद्योगिक आर्थिक क्षेत्र की शुरुआत की घोषणा पहले से कर चुका है। इसके साथ साथ जिन 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं उसमें बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए समझौता हुआ है। साथ ही साथ तीस्ता नदी,
तीस्ता नदी भारत के साथ भी जुड़ी हुई है। जल प्रबंधन पर 50 वर्षीय मास्टर प्लान देने की मांग, यानी कि चीन से मदद लेता हुआ नजर आ रहा है बांग्लादेश। और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार जो है मोहम्मद यूनुस वहां पहुंचे और आप देख रहे हैं कि भारत से लगातार कड़ी प्रतिक्रिया मिल रही है और बयान को लेकर किस तरीके से फंस चुके हैं मोहम्मद यूनुस। संजीव सान्याल के ने जमकर साधा निशाना अपने ट्विटर अकाउंट पर। आप देख रहे हैं संजीव सान्याल क्या लिख रहे हैं, इंटरेस्टिंग दैट यूनुस इज मेकिंग अ पब्लिक अपील टू द चाइनीज अबाउट द 7 स्टेट्स। बट संजीव सान्याल ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप भारत को क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं। आप तो चीन के साथ समझौता करने गए हैं ना, आप तो चीन से मदद मांगने गए हैं, तो आप भारत की इन 7 सिस्टर्स को क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं। रक्षा एक्सपर्ट्स ने भी की है इस बयान की कड़ी आलोचना, कांग्रेस की तरफ से भी कड़ी आलोचना है। पवन खेड़ा ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला है और मोहम्मद यूनुस की कड़ी निंदा की है इस बयान की, जहां बयान को लेकर अब बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं मोहम्मद यूनुस, जहां सभी तरफ से उनको सहनी पड़ रही है आलोचना। अब सवाल ये है कि क्या मोहम्मद यूनुस अपने बयान को वापस लेंगे। अपने संवाददाता अखिलेश सुमन के पास चलते हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अखिलेश, हम देख रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस एक के बाद एक इस तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश वही है ना जो भारत के दम पर खड़ा हुआ था, अब चीन की जमीन पर वो गए हैं और जाकर उनसे आर्थिक मदद मांग रहे हैं, लेकिन भारत पर 7 सिस्टर्स पर क्यों इस तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों चिंके नेक को वो नहीं भूल रहे, क्यों वो तीस्ता नदी को क्यों नहीं भूल रहे, इस मुद्दों को क्यों वो चीन की जमीन पर लेकर आए। देखिए, निश्चित तौर पे ये बहुत ही नासमझी भरा बयान है मोहम्मद यूनुस का, और मेरी जिनसे भी बात हुई उन सब का ये कहना है कि मोहम्मद यूनुस को इस बात को कहने का कोई मतलब नहीं था। वो जिस बात के लिए गए थे वो काम करें अपना, जिस देश के साथ दोस्ती करनी है करें, लेकिन इस तरह के बयान से निश्चित तौर पे जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हैं उन रिश्तों पे प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ेगा। आज बांग्लादेश जिस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, वैसे में उसे भारत की मदद की, सहयोग की जरूरत है। और भारत बांग्लादेश का सबसे करीबी पड़ोसी है, जिसके साथ इसके सांस्कृतिक रिश्ते हैं, जिसके साथ इसके व्यापारी रिश्ते हैं, जिनके साथ इनके आने जाने का सारा संबंध संपर्क है। और ऐसे में मोहम्मद यूनुस, जो कि खुद भी उनका कोई मैंडेट नहीं है, वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है बांग्लादेश के, उनको जरूरत से ज्यादा जाकर कोई समझौता करने का अधिकार नहीं है। वहाँ के राजनीतिक दल वहाँ लगातार मांग कर रहे हैं कि वहाँ चुनाव संपन्न होना चाहिए, ताकि शेख हसीना के हटने के बाद जो कोई वैधानिक सरकार वहाँ नहीं है, चुनी हुई सरकार नहीं है, उस जगह को भरना चाहिए। बिगड़े हुए सुरताल यही बता रहे हैं कि जब तक बांग्लादेश में चुनाव नहीं हो जाते मोहम्मद यूनुस की जुबान यूं ही फिसलती हुई रहेगी। लेकिन भारत का इस पर कड़ा रुख होता हुआ नजर आ रहा है। भारत इस प्रतिक्रिया पर किस तरीके से आगे बढ़ता है, ये तो आगे का रुख बताएगा। विदेश मंत्रालय इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, ये भी आगे देखना होगा। फिलहाल न्यूज पंच में इतना ही। एक बार फिर आपसे मिलेंगे दोपहर को 2 बजे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।